students. Today is Wednesday, April 14, 2021. I am Asim bin Salim and I welcome you all in the science class with a new lesson. Hope you are all doing fine at home. Students, in the previous week we have almost covered chapter number 1 of science. Now we are moving towards the unit number 2. So while doing your homework, you have to prepare a page for unit 2, just as we do during our classes, physical classes at school. Okay, so moving on to our chapter. So, chapter number 2 is World Around Us. So, in this chapter, we will study about our environment in which we are living while discussing what are the habitants that are living in this environment. Habitant mean uh, animals or plants, those who has life. ठीक है, तो हम इनको क्या बोलते हैं, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हमारे सराउंडिंग में, हमारे एनवायरनमेंट में रहते हैं, उनको हम हैबिटेंट्स बोलते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमंस, अस. Okay, so in this chapter we will discuss about these things. So our environment as a whole is known as ecosystem. ठीक है, हम इकोसिस्टम को पढ़ेंगे, इसके कंपोनेंट्स को पढ़ेंगे, फिर हम ये देखेंगे कि इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है बायोटिक एंड एक होता है एबायोटिक कंपोनेंट. बायोटिक मीन निकला है लाइफ से. ठीक है, ऐसा जो लिविंग पार्ट ऑफ द ओवर एनवायरनमेंट इज नोन एज बायोटिक और नॉन लिविंग पार्ट ऑफ ओवर एनवायरनमेंट इज नोन एज एबायोटिक. तो हम इकोसिस्टम के एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स को देखेंगे, फिर हम इम्पॉर्टेंस ऑफ इकोसिस्टम को देखेंगे, फिर हम ये देखेंगे कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर इन्वॉल्वड इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. ये हमारी जो सॉइल है, ज़मीन है, ये कौन कौन से फैक्टर्स पे बेस्ड है जिनसे मिल के ये बनती है, ये कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं इसकी फॉर्मेशन में. Then we will learn about the predator-prey relationship in an ecosystem. So हम basically food chain और food web को पढ़ेंगे. So food chain and food web are the processes that are involved in our ecosystem, in which one is producers and the others are consumer. So producers are those who make their own food, ठीक, and they make food for others as well. ठीक है, and the consumers are those who get that food provided by the producers, जो कि eat करते हैं food that is being provided by the producers. Okay, then the third is decomposers, and decomposers are those कि जो हम animals या plants का जो waste होता है उसको decompose करके soil को energy provide करते हैं, that is known as decomposers. ठीक है, so we will discuss all these things in detail. So moving on to our topic. Our topic number 1 is 2.1 is ecosystem. So what is ecosystem? So ecology is the study of ecosystem. So ecology is a branch of science. ठीक है, साइंस के different branches हैं. So what do you think it is of the belonging to the physical sciences or of biological sciences? It is of the physical sciences. ठीक है, ecosystem is a physical environment. So ecology is the study of ecosystems. So what is ecosystem? An ecosystem is a system of living things that interact with each other and with the physical world. So ecosystem क्या होता है? एक system होता है of living things. ठीक है, ऐसी objects जिनकी life हो, उनका एक system होता है जो कि आपस में क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं विद ईच अदर एंड विद द फिजिकल वर्ल्ड. फॉर एग्जांपल अस ह्यूमंस, हाउ वी आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, वी आर इंटरेक्टिंग, humans are interacting with each other, so it's obvious, we can see that. Then how we are interacting with the animals, so animals provide us food. How we are interacting with the plants, they provide us oxygen, they provide food like vegetables. ठीक है, so therefore there is an interaction between living organisms within an environment या within a surrounding. Okay, so ये तो था हमारा कि
लिविंग थिंग्स का इंटरेक्शन, फिर हमारा इन्वायरमेंट के साथ क्या इंटरेक्शन है, ठीक है, तो दैट इज नोन एज, उसको हम फिजिकल वर्ल्ड बोलते हैं। ओके, देन एन इकोसिस्टम इज कंप्राइजेज ऑफ two components that are biotic and abiotic components. So biotic components include all living things. So living part of an ecosystem is known as biotic component. And abiotic include non-living things such as soil, minerals, climate, water, sunlight, and wind. So these are the factors that affect us. These are the environmental factors such as soil, फिर मिनरल्स लाइक साल्ट, जो ऐसे ऑब्जेक्ट्स, जो ऐसी ऐसी चीज़ें जो हम ज़मीन के अंदर से गेन करते हैं, ठीक है, दैट आर नोन एज मिनरल्स। जैसे कि साल्ट है जो ज़मीन के अंदर से निकाला जाता है, ठीक है, और क्या निकाला जाता है, गैस निकाली जाती है, तेल निकाला जाता है, ठीक है, सो ऑल दीज आर नोन एज मिनरल्स। Okay, then climate. So climate and environment are two different things. Environment is particular to some region. For example, the environment of Islamabad is moderate, and environment of Karachi is very hot, and environment of weather of Kashmir is very cold. So ये बेसिकली वेदर या इन्वायरमेंट, ये एक छोटे सेक्टर के ऊपर, छोटे लेवल के ऊपर ये चीज़ होती है। एंड क्लाइमेट इज़ अ बिगर थिंग। क्लाइमेट डिस्कसेस about whole of the region of, for example let's discuss it's about Asia. So जब एशिया के लेवल के ऊपर हम बात करेंगे, ओवर अ कंटिनेंट के ऊपर जब हम बात करेंगे, तो उस वक्त का जो उसका इन्वायरमेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, क्लाइमेट, ठीक है। आजकल आप सुन रहे होंगे क्लाइमेट चेंज, तो बेसिकली क्या हो रहा है कि इन्वायरमेंट, ओवरऑल इन्वायरमेंट ऑफ द वर्ल्ड जो है वो बेसिकली चेंज हो रहा है। फिर वाटर है, सनलाइट एंड अदर फैक्टर्स। ओके, सो दीज आर दी एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ आवर इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है, सिस्टम ऑफ लिविंग थिंग्स। अच्छा, नाउ द इंटरेक्शंस अमंग बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स सपोर्ट द फ्लो ऑफ एनर्जी एंड साइक्लिंग ऑफ materials in an ecosystem. For example, air temperature, availability of water and amount of wind influence the growth of certain species of plants in an area. So plant species provide food or for animal population, and plants and animals cycle oxygen and carbon dioxide. ओके, सो अभी तो हमने ये देखा कि हमने कहा इकोसिस्टम क्या है, सिस्टम ऑफ लिविंग थिंग्स जो कि आपस में इंटरेक्ट करती हैं, एंड दे आल्सो इंटरेक्ट विद द फिजिकल वर्ल्ड। तो अब हमने देखा कि वो कैसे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं। तो हमने ये कहा कि एयर का टेम्परेचर होता है, एयर प्रेशर होता है, ठीक है, एयर प्रेशर, ये प्रीवियसली आपने सुना होगा कि इस्लामाबाद में एयर प्रेशर कम हुआ, जिसकी वजह से लोगों की नाक से खून बहना शुरू हो गया, और इस तरह के कुछ इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स हमारी बॉडीज़ के अंदर ज़ाहिर हुए, ठीक है। So there is an effect of any environmental factor. Every environmental factor has some effect on the on the habitats of an ecosystem. Okay. So फिर हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि कैसे इंटरेक्ट करते हैं। हमने ये कहा कि प्लांट्स जो हैं वो फूड प्रोड्यूस करते हैं, वो किसको प्रोवाइड करते हैं, एनिमल पॉपुलेशन को, ठीक है। और आपस में हमारा प्लांट्स के साथ क्या इंटरेक्शन है कि वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं हमें, और हम उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड उन्हें किस लिए चाहिए होती है, टू मेक देयर ओन फूड, और हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है टू हैव लाइफ, ठीक है, लाइफ के लिए। सो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एन इकोसिस्टम? सो फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम, द प्रोड्यूसर्स, द ग्रीन प्लांट्स फिक्स सोलर एनर्जी विद द हेल्प ऑफ मिनरल टेकन फ्रॉम देयर edaphic yani soil where they grow, or aerial environment, and build up complex organic matter. These are their food. So with the help of solar energy they convert the chemical energy of the food to kinetic energy and finally heat energy. ओके, सो क्या है फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम कि जो प्रोड्यूसर हैं, जो प्लांट्स हैं, ये कैसे, हाउ दे आर मेकिंग देयर ओन फूड। सो बाय द हेल्प ऑफ बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस का अमल किस वजह से होता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है जो प्लांट्स के लीव्स के अंदर होता है, ठीक है। क्लोरोफिल की वजह से ही प्लांट्स का जो कलर होता है वो ग्रीन होता है, ठीक है। सो वो क्लोरोफिल क्या करता है कि उसे लाइट चाहिए होती है। जब उसे लाइट मिलती है, यानी सनलाइट, सूरज की रोशनी जब उसे पड़ती है, ठीक है, या किसी भी सोर्स से लाइट जब उसके ऊपर पड़ती है, और इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, और उसको जब कार्बन डाइऑक्साइड ह्यूमन सप्लाई करते हैं, ये मिलते हैं, और साथ साथ वाटर और मिनरल जो कहाँ से आती हैं,
इनसाइड द सॉइल, रूट से जो वो एक्सट्रैक्ट करता है, ये सब तीनों चीज़ें कंबाइन होके फिर जब ये लीफ पे पहुंचती हैं तो वहाँ पे क्या बनती है, फूड बनती है। वो बेसिकली फूड किस फॉर्म में होती है, एक कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर होता है, ठीक है। वो फिर फूड क्या है, सप्लाई की जाती है, लीफ सप्लाई करते हैं किसको, थ्रू आउट द प्लांट, प्लांट के हर पार्ट को वो फूड सप्लाई की जाती है। जैसे कि हम अस एज ए ह्यूमन जब हम खाना खाते हैं तो क्या होता है, वो डाइजेशन होती है, डाइजेशन के बाद वो जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है, एनर्जी जो हम लेते हैं वो हमारी पूरी बॉडी को एनर्जाइज कर देती है। फिर देन वी आर एबल टू डू वर्क। व्हेन वी आर हंग्री, जब हम भूखे होते हैं, वी हैव नो एनर्जी। व्हाई वी डू नॉट हैव एनी एनर्जी? सो इट्स बिकॉज देयर इज नो एनर्जी सोर्स और एनर्जी लेट्स से के एनर्जी पैकेट्स आर अवेलेबल इन आवर बॉडी, ठीक है। सो एनर्जी प्रोवाइड होती है हमें फूड से। तो इसी तरह प्लांट्स जो हैं वो एनर्जी गेन करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी वो जो फूड प्रोड्यूस करते हैं उससे। ओके, सो नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम? तो नेक्स्ट फंक्शन इज फ्लो ऑफ एनर्जी। सो एनर्जी कैसे फ्लो करती है? द एनिमल्स ईट अप प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स एज फूड, सो द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड थ्रू फूड टू एनिमल्स। तो पहले एनर्जी कहाँ से ट्रांसफर हुई? सनलाइट, सोलर हमें क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। सूरज हमें रोशनी, उससे हमें एनर्जी हासिल होती है, ठीक है। सो दैट एनर्जी इज यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स टू मेक फूड। वो फूड प्लांट्स को एनर्जी प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, ऑक्सीजन हमें देते हैं। उसके अलावा वो हम प्लांट्स यानी वेजिटेबल्स को हम खाते हैं, दे आर प्लांट्स, ठीक है। सो उनको खाते हैं तो क्या होता है, हमें एनर्जी मिलती है। एनिमल्स खाते हैं या ह्यूमंस खाते हैं तो हम एनर्जी गेन करते हैं। तो ये देखें एक एनर्जी का पूरा फ्लो बन रहा है। नेक्स्ट, व्हाट इज साइक्लिंग ऑफ मटेरियल्स? क्या होता है जी? तो कहता है व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल डाई देन डिकम्पोजर्स एक्ट ऑन देयर डेड बॉडीज एंड डिकम्पोज देम इनटू सिंपल मटेरियल्स लाइक carbon dioxide, water and minerals which go back to air, water bodies and soil from where they were taken. So क्या होता है साइकिलिंग ऑफ मटेरियल? मटेरियल साइकिल हो रहे होते हैं। कैसे साइकिल हो रहे होते हैं? प्लांट्स को मैंने क्या कहा, मिनरल्स चाहिए, सोलर एनर्जी चाहिए, उसके बाद उनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। इनको यूज़ करते हुए वो क्या बनाएंगे, अपने फूड से उनको एनर्जी गेन होगी। सो एनर्जी वो आगे ह्यूमंस को या एनिमल्स को सप्लाई करेंगे, ठीक है। तो क्या होता है, एनिमल्स जब फूड खाते हैं उसके बाद वेस्ट प्रोडक्ट जो जनरेट होता है वो ट्रैश कर दिया जाता है, ठीक है। इस तरह प्लांट्स जब डाई हो जाते हैं, मर जाता है प्लांट, पौधा मुरझा जाता है, तो उसको हम नीचे ट्रैश कर देते हैं। तो वो कुछ अरसे बाद हम उसको देखते हैं कि वो वहाँ से ख़त्म हो जाता है, उस अपनी एक एग्जिस्टेंस के ऊपर अगर आप उसको फेंक दो तो वो क्या हो जाएगा, कुछ अरसे बाद डिकम्पोज हो जाएगा। क्यों डिकम्पोज होगा? देयर आर सम डिकम्पोजर्स। व्हाट आर दीज? बैक्टीरियाज, फंजाई, इस तरह के जो क्या कहते हैं हम इनको, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिनको हम देख नहीं सकते, दे आर हेल्पिंग इन द डिकम्पोजिशन ऑफ दीज वेस्ट मटेरियल। और ये वेस्ट मटेरियल वापस क्या बन जाते हैं, मिनरल्स के तौर पे बनते हैं, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, इस तरह की गैसेस प्रोड्यूस करती हैं जो कि सॉइल के लिए हेल्पफुल होते हैं, और वही सॉइल वापस फिर फर्टाइल लैंड बन जाती है फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। सो नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ functioning of ecosystem? So कहता है plants get carbon dioxide from air and water, they take minerals from water bodies and soil. Plants make their food with the help of absorbed carbon dioxide, minerals and solar energy, as I already explained you. This process is repeated again and again. This leads to the continuous functioning of the ecosystem. तो ये जो ecosystem का हमारा function होता है, ये continuous process चल रहा होता है, ठीक है। ये नहीं है कि ये किसी time के लिए रुक जाता है। It is life long है इसकी, ठीक है। ये हमेशा चलता रहता है ecosystem, बिकॉज वी ऑल आर डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर। क्या हम प्लांट्स के बगैर सर्वाइव कर सकते हैं? नो। क्या प्लांट्स ह्यूमंस के बगैर सर्वाइव कर सकते हैं? नो, बिकॉज वी प्रोवाइड देम कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर ओन फूड एंड वी नीड ऑक्सीजन प्रोवाइडेड बाय दीज प्लांट्स। देन एनर्जी फ्लो थ्रू द इकोसिस्टम, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस। हम इसको फिर से देख लेते हैं ताकि नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम
नेक्स्ट लेक्चर में हम इंपॉर्टेंस ऑफ इकोसिस्टम से आगे पढ़ें. So energy flow through the ecosystem. The transfer of energy in matter takes place in the process of predator and pre relationship in a food chain. The original source of energy is the energy from the sun. ये वही एनर्जी फ्लो बता रहा है, उसको अब मजीद एक्सप्लेन कर रहा है कि आउट ऑफ द enormous amount of energy continuously radiated by the sun, most of it is reflected and refracted back to atmosphere. Earth's surface and object like plants, only a very small fraction, about 1% of the solar energy received by the plant is used through the process of photosynthesis. तो सूरज की इतनी ज़्यादा एनर्जी है कि most of it यानी 99% of it is reflected or refracted back to the upper atmosphere, and we only get the plants only use 1% of the solar energy. So ये एक MCQ आपके पास बन रहा है कि plants, how much percentage of energy is used by the plants. So plants use 1% of the energy uh, for to make their own food by the process of photosynthesis. So that's all from today. Your homework will be shared on in the WhatsApp group as well as on the portal. Thank you for joining. Allah Hafiz.